बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 27 ऑफ वीक नंबर 9। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने लास्ट वीक में वीक नंबर 8 को कंप्लीट करने के बाद वीक नंबर 9 को स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ये जो वीक नंबर 9 हमने स्टार्ट लिया है और ये वीक नंबर 9 का आज थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हमारे पास बेसिक जो हैं हम डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, बिकॉज आने वाले जो वीक नंबर 10-11 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूज़ हो गए। सो उससे पहले हमें ये मालूम होने बाज़ाहिर तो ये छोटे से टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन इनको समझने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से ही इन टॉपिक्स को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस की कैनोनिकल फॉर्म्स, and before that we discussed the soap and post forms of the expression, and then in the last lecture we discussed the canonical form, and then canonical post and soap form, and then min-terms and max-terms, and in the last side of the previous lecture we discussed the min-term and max-term and their equivalent terms in the form of zeros, one, and the variable form. So in today's lecture we discuss the conversion of canonical form, that is the conversion of soap form to post form and post form to soap form, then the conversion of soap form to standard soap form or canonical soap form, and conversion of post form to standard post form or canonical post form. So first we will discuss the conversion of canonical forms. We can represent the one canonical form equation into another canonical form, that is we can represent the soap form of equation into post form and post form of the equation into soap form. For this conversion we interchange the sign used in the soap form, that is summation, and the sign used in the post form for the product terms are interchanged with each other, and then we will take the indexes number of the equation we are executing from the original form, which are excluded from the original form of the equation. Indexes number क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे. The important thing is to remember in the about the Boolean function is that the soap and post forms are dual to each other. There are two steps to follow to convert the canonical form into the equation. They are step number one is interchanging the operational symbol summation with the operational symbol for the product terms in the equation, and then using the Morgan's principle of the duality to the index number of the Boolean function, or writing the indexes of terms that are not present in the given form of the equation. So ये कहता है कि पहले हम symbols को जो कि soap और post के अंदर यूज़ होते हैं उनको चेंज कर देंगे ऑपरेशनल सिम्बल्स को, और देन जो टर्म्स मिस होगी जिस इक्वेशन में उन टर्म्स को लेके हम अपोजिट टर्म बना लेंगे. कैसे बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे. टू कन्वर्ट द सोप फॉर्म इनटू पोस्ट फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द सिम्बल्स, देन write the numeric indexes of the missing variables of the given Boolean function. For example, if we have a Boolean function like this, from here हमें इसको clearly understand कर लेते हैं कि this is the sum of product term function. This function जो है ये फंक्शन जो है ये आपके सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कहलाएगा. क्यों? बिकॉज इस साइन से हमें पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म का है, और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो हमारे पास जो यूज़ हुए हैं वो यूज़ हुए हैं हमारे पास ए बी सी. सो 2 पावर n फार्मूला इज इक्वल टू टोटल 8 टर्म्स हमारे पास इधर से आती हैं, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. सो आपको इस क्वेश्चंस को ओपन करना ज़रूर आना चाहिए. आने वाले वीक्स में हमें इसको करना होगा. सो पिछले लेक्चर का जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था वो ये इक्विवेलेंट टर्म्स हैं जो कि 0 to 4 है. तो ये एक फंक्शन है जिसके अंदर ए बी सी वेरिएबल है और उसके अंदर जो है हमारे पास ये टर्म्स मौजूद हैं. इसको देख के हमें क्लियरली पता लगता है कि इसमें से 1, 4, 6 मिसिंग है. ठीक है. सो हम स्टेप 1 लेते हैं. सबसे पहले हम ये साइन को चेंज कर लेते हैं विद दिस, एंड उसके बाद हमारे पास जो है मिसिंग टर्म्स 1, 4, 6 को हम ले लेते हैं. तो मिसिंग टर्म 4, 4, 6 को जब हमने लिया, वे जो आपको बार बार आ रहा था कि मिसिंग इंडेक्सेस ऑफ द इक्वेशन को लेना है, तो वो था 1 था, 4 था. इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स हैं 1, 4 और 6 के, उनको हमने इक्विवेलेंट पोस्ट टर्म्स लिख ली, बिकॉज हम इसको पोस्ट में कन्वर्ट करें तो पोस्ट टर्म्स ले ली और उनको हमने करने के बाद इसको कन्वर्ट कर लिया. तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो आप लोगों के सामने कन्वर्ट सोप फॉर्म इनटू द पोस्ट फॉर्म. क्लियर है?
तो ये हमारे पास मेन चीज़ थी जो कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। ये आपको आना चाहिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन होता है उसको आपको दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म ऑफ सोप एंड पोस्ट या इन टर्म ऑफ मैक्स टर्म एंड मिड टर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन में मैक्स टर्म दी हुई है तो उसकी मिड टर्म कैसे निकालनी है, अगर किसी क्वेश्चन में मिड टर्म दी हुई है तो मैक्स टर्म कैसे निकालनी है। तो ये आप लोगों को मालूम होगा तो फिर आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे इन कॉर्नर ऑफ मैप। वहाँ पर हम लोग ये करेंगे इंशाल्लाह। समर वेकेशन के बाद हम लोग इसको करेंगे। समर वेकेशन से पहले हम इन सब टर्म्स को, और कल हम जो है बूलियम के थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेशन और देन कॉर्नर ऑफ मैप बंदा कैसे वो पढ़ेंगे। और आफ्टर समर वेकेशन अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और यूनिवर्सिटी रेगुलर ओपन हो गई तो हम उसको इंशाल्लाह क्लास में, अदरवाइज हम ऑनलाइन ही करेंगे। तो क्लियर हो गया? ओके, सो कन्वर्जन ऑफ पोस्ट फॉर्म टू सोप फॉर्म में हम करते हैं। टू कन्वर्ट द पोस्ट फॉर्म इनटू द सोप फॉर्म, फर्स्ट वी शुड चेंज symbol for the product term into the symbol of for the soap expression, and then we write the numeric indices of the missing variable. For example, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम देख के हमें पता चल गया कि ये अब हमारे पास पोस्ट है बिकॉज ऑफ दिस साइन। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और ये टर्म्स हैं, तो इसके अंदर 0, 1, 4, 6 एंड 7 टर्म मिसिंग है और ये हमने इसके इक्वलेंट टर्म्स को लिख लिया। ये भी आपको टेबल में अवेलेबल है। ये टर्म्स आपको खुद बनाने आनी चाहिए कि हर टर्म किसके इक्वल है। स्टेप नंबर 1 में हम चेंज कर रहे हैं सैम्पल को समेशन में। सो हम लोगों ने जब ये सैम्पल चेंज किया तो हमारे पास ये आ गया। बाकी वेरिएबल वो है और मिसिंग वैल्यूज़ ये है। मिसिंग वैल्यूज़ के लिए अगर आपको मैंने क्या ये 8 वैल्यूज़ हैं, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये हम फर्स्ट जो है टर्म के कोर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ा है, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ये, तो ये इक्वलेंट आपको याद होगा तो आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ही हमने इनके इक्वलेंट वैल्यूज़ लिख लिए ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको टेबल के साथ मैच करें, कहीं पर गलती हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इक्वेशन सोप फॉर्म की जो है सोप फार्म के लिए जो लिखेंगे तो वो आपके पास इस तरीके से, ये पोस्ट फार्म था इसको आपने सोप में लिखा तो ये मिसिंग वैल्यू है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको क्लियरली आनी चाहिए। क्लियर होगी बात आपको? ओके, आफ्टर दिस जो मेन टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक जो 2 टॉपिक हैं, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ सोप फॉर्म टू स्टैंडर्ड सोप फॉर्म। स्टैंडर्ड सोप फॉर्म या कैनोनिकल सोप फॉर्म वो फॉर्म होते हैं कि जिसमें आपके पास आपकी फंक्शन या इक्वेशन के अंदर ईच टर्म के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ए बी सी यूज़ करें तो हर एक टर्म में ए बी सी होना लाजमी है। अगर ए बी है और अगले में सी डी है तो इसका मतलब दो वेरिएबल दोनों में मिसिंग है। या अगर ए बी है और फिर बी सी है और फिर ए सी है तो इसका मतलब हर टर्म में एक एक मैन है। वही बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वी कैन इंक्लूड ऑल वेरिएबल्स इन ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ द सोप फॉर्म इक्वेशन which doesn't have all the variables by converting into the standard SOAP form. The normal SOAP form function can be converted to standard SOAP form by using the Boolean algebraic law a plus a complement and by following the below steps. ये आपने वही बात जो मैंने बोली कि हम इसको करेंगे और इसको अलजेब्रिक लॉ जहाँ पर जो वैल्यू मिसिंग है, फॉर एग्जांपल ए बी सी की जगह ए बी लिखे और सी मिसिंग है तो सी के लिए आप ए प्लस ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन आप इसकी जगह पर सी प्लस सी कम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? बाय मल्टीप्लाइंग नॉन स्टैंडर्ड product term with the sum of its missing variable। देखिए मिसिंग वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल z इज मिसिंग तो z के साथ होगा, c इज मिसिंग तो c के साथ होगा, and its complement which is result into two the product terms। Then in step number 2 by repeating the step number 1 until all resulting product terms contain all variables. By these two steps we can convert the SOAP function into the standard SOAP function, and in this process for each missing variable in the function the number of the product terms will be double। तो ये वो बात है जो कि मैं आपको पहले बताई है लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। नो एक एग्जांपल करते हैं। फ्रॉम दिस एग्जांपल वी विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट how the simple SOAP form is converted into standard SOAP form. For example, we have equation like convert the non-standard SOAP form स्टैंडर्ड सोप फंक्शन दैट इज f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये इसलिए आपको यहाँ पर ही सब कुछ बता रहे हैं इस एडवांस में कि जब आगे जब कानफ में आएगा उसके अपने इतने स्टेप्स होते हैं समझने के लिए और उसको सॉल्व करने कि वहाँ पर हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे कि ये सोप फॉर्म स्टैंडर्ड सोप में क्यों कन्वर्ट हो रही है और कैसे हो रही है। यहाँ पर हम इसलिए सीखेंगे व्हेन एवर
किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई वेरिएबल मिसिंग आ रहा है तो जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करें तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वी हैव ए फंक्शन लाइक f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड एंड वाई जेड। सो हेयर आपको पता है इस फंक्शन में तीन वेरिएबल यूज होने एक्स वाई एंड जेड, बट इन ईच टर्म one variable is missing. Here x is missing, here y is missing, here z is missing. So for that we multiply the missing variables with each term, जिसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि हम लोगों के पास ये इसका मेथड है इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले में जो मिसिंग वेरिएबल होगा हम उसको यूज करेंगे। सो मिसिंग वेरिएबल z है तो इधर z प्लस z कॉम्प्लीमेंट, इधर y है तो y प्लस y कॉम्प्लीमेंट, इधर x है तो x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, इनको मल्टीप्लाई किया, ये टर्म्स हमारे पास आ गई। इसमें तीन टर्म्स एक जैसी आ गई हैं। सो बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ बूलियन, जिसमें x प्लस x से x आता है और y प्लस y से y और z प्लस z से z आता है। बूलियन के थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ, ये आप पिछले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो उसकी मदद से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया और हमने एक दफ़ा इसको लिख दिया। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन ये और ये हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 एंड 3 ये लिख लिया और हमारे पास स्टैंडर्ड सोप जो है उसका फंक्शन बन गया। तो ये इस तरीके से आप किसी भी सोप फॉर्म को स्टैंडर्ड सोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बिफोर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी फंक्शन। सो ये अगर मिसिंग है तो आपने इसको करना होगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई इशू कोई मसला हो तो आप दोबारा इसको सुन लें और मुझसे डिस्कस कर लें व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, डिस्कशन बोर्ड में। इंशाल्लाह आपका जो भी इशू हो उसको मैं सॉल्व करूँ। लेकिन अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले आपने पिछले 2 लेक्चर्स की वीडियो ज़रूर देखें और देन इसको देखें ताकि आपको लेक्चर समझ आए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द पोस्ट फॉर्म टू द स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म और कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म। सेम प्रोसीजर करेंगे बट दिस इज द अपोजिट ऑफ सोप। वहाँ पर हमने प्रोडक्ट टर्म था, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम है। सो वहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हमने ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर हम ए डॉट ठीक है, ए स्टेरिक है या ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। यानी जो टर्म मिसिंग होगी उस टर्म की जगह ये करेंगे और ये फंक्शन भी यूज़ हो सकता है। और अगेन वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट में जो है पोस्ट स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है गिवन है, उसको अगर आपने देख लिए पढ़ लें तो आपको लगेगा ये कंप्लीट है। लेकिन जब आप इसके आखिरी टर्म को पढ़ेंगे तो उसमें ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, जबकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर आपके पास डी मिसिंग है और यहाँ पर आपके पास ए मिसिंग है। उसके लिए आपने फर्स्ट इस टर्म को डी के साथ डी मल्टीप्लाई बाई डी कर लें, बिकॉज जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है। तो 0 का मतलब है कि हम ये पिछले फार्मूले से ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो डी मिसिंग है तो डी के लिए डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट लगा लिया और यहाँ पर वाई के लिए हमने ए के लिए ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों टर्म्स को से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फाइनल फंक्शन जो है उसमें ये सारी टर्म्स है, बिकॉज इसमें कोई रिपीटेटिव टर्म नहीं है। अगर रिपीटेटिव टर्म हो तो उसको आप लोग अंदर से एक कंसीडर करें, 2 टर्म या 3 टर्म को एक कंसीडर करेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म्स को फिर आप उसी तरीके से ले लेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने पोस्ट फॉर्म को कन्वर्ट किया है इनटू दी सोप फॉर्म। तो ये आज के जो है हमारे पास लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पोस्ट को जो है आप लोगों ने स्टैंडर्ड पोस्ट में कन्वर्ट किया और सोप को स्टैंडर्ड पोस्ट में। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया वो हम लोगों ने कन्वर्ट किया सोप और पोस्ट किसी इक्वेशन या किसी एक्सप्रेशन या किसी फंक्शन से कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको कोई गिवन फंक्शन हो और आपको कहा जाए कि इसको पोस्ट और सोप दोनों से हल करें और अगर आपको एक की वैल्यू गिवन हो और दूसरे की नहीं तो देन आपने दूसरा खुद ड्राइव करना होगा। इसी तरह आपके पास कोई फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं है तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद कन्वर्ट करना होगा। तो आज के लेक्चर में ये मेन बात थी। वीक नंबर 9 का ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड हो रहा है। कल हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज लेक्चर वीक नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉस को हम इसी वीक में ख़त्म कर देंगे और क्वांटम वेव बनाना सीख जाएंगे। देन आफ्टर समर वेकेशन हम रेस्ट ऑफ दी लेक्चर 10, 11, 12 को डिस्कस करेंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इन लेक्चर को बड़े गौर से देखना और सुनना है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई इशू कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।